Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students, how are you all? Hope you will be fine. I am your English teacher and we are going to read our lesson I want to stay awake. Students, what means need? Stay means keep and awake means not asleep. Students, the title of the story shows the story is about a person who is not want to sleep because of the work. Okay students, now let's start the reading of this one chapter. One morning, the emperor means king of China, was feeling tired and sleepy. He had a lot of means much work to do, but he could not keep his eyes open. Perhaps I am sick means ill. He said to his servant means maid, get means call my doctor. वन डे क्या हुआ, जो चाइना का एम्प्रर था, किंग था, उसको बहुत ज़्यादा टायर्ड और स्लीपी फील हुआ, बट ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और जो उसकी आईज थी वो ठीक से ओपन नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो स्लीपी फील कर रहा था। उसको ऐसा लगा, यानी कि किंग को ऐसा लगा कि जैसे कि वो बीमार हो गया है, सिक हो गया है। और उसके लिए उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गेट माई डॉक्टर, यानी कि उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया कि डॉक्टर को बुलाएं। When the doctor arrived means came, the emperor said, I have many things to do today, but I can't keep my eyes open. Can you help me? यानी कि जो एम्पर था, किंग था, उसने अपना जो सारी प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर के सामने रख दी। और क्या प्रॉब्लम थी कि ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बट ही कांट open his eyes because he was feeling so much tired and sleepy. The doctor opened means unpacked his bag and took out a small box. Oh, what was inside the box? There were some dry, dark leaves inside the box. Great Emperor, would you like to chew? Chew means crush. Some of these leaves, they will help you. They are called tea leaves. Said the doctor. He offered means presented the emperor a few leaves. Few means some. यानी कि उसने अपने बॉक्स में से कुछ लीव्स निकाले और उन लीव्स को क्या कहते थे, टी लीव्स। और उसने एम्प्रर को ऑफर किया कि वो इन लीव्स को खा जाए, ठीक है, इनके च्यू कर ले, क्रश करे। Now next is the emperor looked at the tea leaves, then he put them in his mouth and began means started to chew them. They don't taste nice. Nice means good at all. यानी कि उसने स्टार्ट तो कर दिया उसको खाना टी लीव्स को, लेकिन उसको अच्छे ना लगे। They are uneatable. Uneatable means not able to eat, यानी इनका टेस्ट इतना अजीब था कि उनको खाया नहीं जा सकता था। Said the emperor. Emperor ने कहा, but they will help you to stay awake. Great emperor, said the doctor. डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि if they are not good in taste, but they will help you to stay awake. The emperor was angry. Angry means furious, यानी कि उसको गुस्सा आ गया। I am the emperor, यानी कि मैं king हूँ। If something doesn't taste nice, I would not chew it. Shouted the emperor, if you don't take your leaves away, I will cut off your head. Cut off means kill. यानी उसको टेस्ट उसका इतना बुरा लगा कि उसने कहा कि अगर तुम ये लीव्स मुझसे दूर ना लेके, then I will cut off your head. Just as the doctor was leaving means going away, two servants came into the room. They were carrying means holding the emperor's bath. It was full of hot water. Some of the tea leaves that the doctor was carrying fell into the hot water. यानी कि जब डॉक्टर जा रहा था तब क्या हुआ कि कुछ जो टी लीव्स थे वो हॉट वाटर में गिर गए mistakenly. That smells means fragrance. Wonderful means amazing. Perhaps I can drink the tea leaves, the emperor said to the doctor. Emperor ने क्या कहा था कि the taste was not as good, so I can't chew it, लेकिन its smell is wonderful, so I can drink these tea leaves. Bring means fetch me a cup of hot water, he said to his servant. उसने अपने servant से क्या कहा कि give me a cup of hot water because he wanted to drink the tea leaves because its smell was good, but its taste was not good. When the servant brought a cup of hot water, the emperor put a few tea leaves into the water. The water became means turned a beautiful golden color and smelled very nice. The emperor tasted the water. A big smile spread means came on across his face. This tastes wonderful means amazing, he shouted in excitement means happiness. Then he drank
up all the water. जब पानी का कप आया, गर्म पानी का कप आया, तो एम्पर ने क्या किया, he put some tea leaves into the water. और फिर क्या हो गया, after this the color of the water was changed. जो वाटर का कलर था वो चेंज हो गया, and smell was also very nice. और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी, कलर भी चेंज हो गया, गोल्डन कलर में चेंज हो गया, और स्मेल भी बहुत नाइस थी. तो क्या किया, एम्पर ने जो पूरा कप था वो पी लिया, एंड ही वॉज फीलिंग वेरी नाइस. उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको पी के. A few minutes later, later means after, he stopped feeling sleepy. उसको पीने के कुछ देर बाद जो स्लीपी फील हो रहा था ना स्टार्टिंग में, और टायर्ड फील हो रहा था, उसको फील होना स्टॉप हो गया. He was fully means completely awake. अब वो मुकम्मल तौर पे जाग रहा था. And he felt young means fresh, and strong means powerful again. उसको लगा था कि वो बिल्कुल ही अब जो है वो एक्टिव हो गया. The emperor smiled at the doctor. You are very clever. Clever means smart. He said, I would not cut off your head. अब मैं तुम्हारा जो सर है उसको कलम नहीं करूँगा. Then the emperor turned means face to his servant and said, bring me a cup of this wonderful drink every morning. यानी कि उसको इतना अच्छा लगा वो कप जो टी लीव्स के साथ मिक्सअप था, उसने कहा कि मुझे एवरी मॉर्निंग यानी कि मुझे डेली बेसिस पे ये जो कप है हॉट वाटर का और इसमें टी लीव्स को ऐड करके दिया जाए. सिंस दैट डे, उस दिन से, पीपल हैव ग्रोन मीन्स प्लांटेड टी इन चाइना एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और उसके बाद से क्या हुआ कि जो टी लीव्स थी इसकी ग्रो अप ज़्यादा स्टार्ट हुई, इसको प्लांट किया जाने लगा. Now the topic is learn spelling. The first one is fill in the blanks with. They have given us some alphabets and these alphabets we have to put in the words to complete these words. ठीक है, इन वर्ड्स के अंदर उन्हें स्पेस छोड़ी, इन वर्ड्स को हमने complete word में convert करना है. First one है CH blank W, so what comes here? E. 2. Next is B S blank D, so what comes here? AI यानी कि set. C1 is BEL blank VE, what comes here? IE यानी कि believe. Next is H blank GHT, what comes here? EI यानी कि height. Next is GR blank T EA, what comes here? EA यानी कि grade. Next is EAG blank N, what comes here? AI यानी कि again. नेक्स्ट इज पार्ट 2 है इसका, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो एंड पुट अ टिक अगेंस्ट इट. यानी कि उन्हें हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्पेलिंग वाइज रॉन्ग हैं और उनके आगे बॉक्सेस बने हैं. इस बॉक्सेस में जो करेक्ट वन स्पेलिंग होगी उसके अंदर हम टिक मार्क कर देंगे. तो फर्स्ट वन वर्ड है वंडरफुल. कौन से स्पेलिंग्स करेक्ट हैं? WUNDERFUL, WONDERFUL, WONDERFULL. सो विच वन करेक्ट वन? G. Mid one is the correct one. WONDERFUL, wonderful. नेक्स्ट है एम्पर. एम्पर के क्या स्पेलिंग करेक्ट हैं? EMPEROR या EMPERER, और द लास्ट वन EMPORER. सो विच इज़ द करेक्ट वन? येस, द फर्स्ट वन EMPEROR. नेक्स्ट वर्ड है ऑफर. OFERRED, OFFERRED, OFFERED. So which is the correct one? G, the last one, OFFERED. नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट में है EXITEMENT, EXCITEMENT, EXCEIMENT. So which is the correct one? Yes, the middle one, the mid one, EXCITEMENT, excitement. Last word is beautiful. BEUTIFUL, BEAUTIFULL, BEAUTIFUL. Which is the correct one? Yes, the last one, BEAUTIFUL, beautiful. Now the next one is choose your answers from the list below and write them against the number concerned. Students, they have given us some pictures here and also some words. और ये जो words हैं ये क्या हैं? Professions के word हैं. इन प्रोफेशंस के जो नेम्स हैं इनको हमने राइट करना है इन ब्लैंक्स के अंदर. फर्स्ट वन क्या है? अ मैन इज़ मेकिंग द पोट्स बना रहा है मट्टी से, तो व्हाट इज़ ही? अ पोटर. नेक्स्ट वन इज़ यू कैन सी अ पर्सन हु इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स. हु वाज ही? इज़ अ टीचर. नेक्स्ट इज़ फीमेल इज़ चेकिंग द baby girl, so what is she? A doctor. Next one is you can see the uniform of which one professions belong? Yes, he is a policeman. And the last one is, as you can see, he is working on the wood, so what is he? A carpenter. Okay students, now it's a turn to solve exercise of this one chapter on workbook. It is on page number 6 to 9. So the first one topic is consult your dictionary, word, definition, sentences. Students, the topic is consult your dictionary. Dictionary में से हमने meanings को find out करना है. They have given us the three
कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज हैं, विच इज़ द फर्स्ट वन। फर्स्ट में वर्ड्स दिए गए हैं और इसके साथ ही हमें बताना है दिस वर्ड्स आर बिलोंग्स टू द विच वन पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के किस पार्ट से ये बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम उसकी डेफिनेशन बताने हैं, उस वर्ड को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है और लास्ट कॉलम में हमने उसे एक सेंटेंस को क्रिएट करना है। फर्स्ट वन जैसे है सर्वेंट। सर्वेंट क्या है? नाउन है, यानी कि और एंड व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, आइडिया भी इसको कह सकते हैं, एक्सेट्रा, यानी कि इस भी चीज़ का नेम है, नेमिंग वर्ड है। तो सर्वेंट क्या है? डेफिनेशन क्या है? समवन हु वर्क्स इन हाउस होल्ड ऑफ एंड अदर सच एज मेड, यानी कि किसी के घर में काम करना। सेंटेंस क्रिएट करेंगे, आई वॉन्ट टू हायर अ सर्वेंट। नेक्स्ट इज ऑफर्ड। ऑफर्ड मीन्स ऑफर्ड क्या है? किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है? वर्ब से। क्या है? ऑफर्ड वर्ब है। और व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ को परफॉर्म करना, कोई भी एक्ट परफॉर्म करना क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? टू पुट फॉरवर्ड होपिंग टू बी एक्सेप्टेड। और इसका सेंटेंस क्या है? शी ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज़ अवेक। अवेक क्या है? वर्ब है, ये भी वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ड है। टू अवेक फ्रॉम स्लीप। डेफिनेशन क्या है? टू अवेक फ्रॉम स्लीप, यानी कि सोते से जागना। ठीक है, यानी कि सोया अगर वो जाग जाए तो वो क्या है? अवेक। सेंटेंस है, आई अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज वंडरफुल। वंडरफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एंड व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड व्हाट इट डिस्क्राइब्स? इट डिस्क्राइब्स नाउन। ठीक है, ये नाउन को डिस्क्राइब्स करता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? एक्सट्रीमली गुड और फाइन। सेंटेंस, इट इज़ a wonderful story. So the last one word is excitement. And what is excitement? It is noun. And what is noun? Noun is a naming word. It is a name of a person, place, thing or idea. The definition of excitement is the state of being excited. And the sentence is, in my excitement I dropped the book. नेक्स्ट इज पेज नंबर 7, मिसिंग लेटर्स। अगेन स्टूडेंट्स वही चीज़ है कि वर्ड्स हैं, उसमें से कुछ लेटर्स जो है मिसिंग है, हमने इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है इन लेटर्स को प्लेस करने के बाद। फर्स्ट वन क्या है? एम्परर है। इसमें हम ई और आर को प्लेस करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट वर्ड को फिर हम नेक्स्ट ब्लैंक पे राइट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ चाइना। नेक्स्ट इज़ ऑफर्ड, यानी कि 1 एफ को प्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज़ अनईटेबल, एन और ए को हमने यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट, एक्स और ई को ऐड किया है और उस वर्ड को कंप्लीट करके हमें नेक्स्ट ब्लैंक पे राइट कर दिया है। नेक्स्ट इज शाउटेड, यानी कि वी हैव एडेड ओनली ओ। नेक्स्ट इज स्प्रेड, पी को ऐड किया है। नेक्स्ट इज स्मेल्स, एस को ऐड किया है। नेक्स्ट इज डॉक्टर, डी और ओ को ऐड किया है। लास्ट वर्ड इज़ वंडरफुल, डी और एफ को ऐड किया है पहले हमने इन ब्लैंक्स में, और फिर जब ये वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है फिर हमने इसको राइट कर दिया है उसे नेक्स्ट कंप्लीट ब्लैंक में कंप्लीट वर्ड राइट कर दिया। नेक्स्ट इज द आंसर द क्वेश्चन, वाई वॉज द डॉक्टर कॉल्ड बाय द एम्पर वन मॉर्निंग, यानी कि डॉक्टर को क्यों बुलाया गया था? द डॉक्टर वॉज कॉल्ड बाय द एम्पर टू हेल्प हिम इन रिमूविंग हिज टायर्डनेस एंड मेक्स हिम टू स्टे अवेक। नेक्स्ट इज द डॉक्टर गिव द एम्पर सम tea leaves to help him stay awake. The emperor chewed them but thought that they did not taste nice. नेक्स्ट है, द एम्पर वॉज एंग्री बिकॉज, एम्पर को क्यों गुस्सा आया था, क्यों नाराज हुआ था? ही कुड नॉट ची द टी लीव्स, यानी कि उसको खा ही नहीं सकता था। और द टी लीव्स वर नॉट टेस्टी, येस द टी लीव्स वर नॉट टेस्टी। Now question number 4 is, as he was leaving the emperor's room, the doctor dropped some tea leaves into the emperor's bath water on purpose. True or false? So students, this statement is true or false? So definitely it is the false one, so tick on the false. Question number 5 is, that smells wonderful, said the emperor. What does that refer to? So that refers to tea leaves water. Question number 6 is, why did the emperor ask for a cup of hot water? So answer of this question is, he asked for hot water to soak tea leaves in it. Question number 7 is, when the servant brought the bath cup of hot water, यानी कि क्या लेकर आया था? बाथ और cup of hot water, so definitely bath. Next is the emperor और doctor put some tea leaves in the water. किसने tea leaves को ऐड किया था? emperor ने और doctor ने, so make the tick on doctor. Next is, he tasted or smelled it first and then drank it all up. What comes here? Tasted or smelled? Smell किए थे ना उसने, so make the tick on smelled. Last one is, soon he started or stopped feeling sleepy. Soon he stopped feeling sleepy. उसके बाद उसने sleepy feel करना stop कर दिया था ना. Question number 8 is, what two things did the emperor do to show that he liked the tea? So answer of this question is, he smiled happily after smelling it, and when he tasted it, he said excitedly, this tastes wonderful.
Next is question number 9. Do you think the empress doctor was a good and clever doctor? What do you think? So, the answer of this question is the empress doctor was good and clever because he knew the treatment of removing his tiredness problem. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इज द टर्न टू रिकॉल द स्टोरी. हम जल्दी से स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं बाय गिविंग द आंसर्स ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट. स्टोरी किस चीज़ के बारे में थी? द स्टोरी वॉज अबाउट द एम्परर हु वॉन्टेड टू रिमूव हिज टायर्डनेस टू स्टे अवे बिकॉज ही हैड टू परफॉर्म हिज लॉयल ड्यूटीज़. नेक्स्ट इज व्हेन डिड द स्टोरी हैपन. स्टोरी कब हुई थी? द स्टोरी हैपेंड इन वन मॉर्निंग ऑफ चाइनीज हिस्ट्री. नेक्स्ट इज वेयर डिड द स्टोरी हैपन. कहाँ पे हुई थी? द स्टोरी हैपेंड इन द रूम ऑफ चाइनीज एम्परर. नेक्स्ट इज हु वॉज इन द स्टोरी. स्टोरी में कौन था? द ग्रेट एम्परर ऑफ चाइना वॉज इन द स्टोरी. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द स्टोरी. स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वॉज डैट एम्प्रेस टायर्डनेस कुड बी कर्व्ड बाय च्यूइंग टी लीव्स डैट वर अनईटेबल सो दे वर सोक्ड इन हॉट वाटर, स्मेल्ड एंड टेस्टेड वंडरफुल. नेक्स्ट इज द एम्पर ऑफ चाइना वॉन्टेड टू स्टे अवेक, यानी कि जो चाइना का एम्पर था वो जागना चाहता था. ही यूज 3 लीव्स ऑफ टी. वन डे उसने 3 लीव्स यूज़ किए. सेकेंड डे ही यूज 6 लीव्स. नेक्स्ट उसने 6 लीव्स यूज़ किए. ऑन द थर्ड डे ही वुड यूज़ 9 लीव्स. और नेक्स्ट डे वो कितने लीव्स यूज़ करेगा? ही विल यूज़ 9 लीव्स. कैन यू कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस फॉर हिम फॉर द अपकमिंग डेज. इस तरह से हमने इन टी लीव्स को के सीक्वेंस को कंप्लीट करना है. सो कंप्लीट दिस सीक्वेंस. फर्स्ट में है 3, देन है 8, देन है 13. आफ्टर दिस व्हाट कम्स हियर 18, देन 23, यानी कि हमने इसमें 5 ऐड करते गए हैं. नेक्स्ट इज 28. नेक्स्ट में क्या है 7, देन है 21, यानी कि हमने 7 में 14 ऐड किए हैं तो 21. फिर 21 में 14 ऐड करेंगे तो 35. व्हेन वी ऐड 14 इन 35 देन इट बिकम्स 49. व्हेन वी ऐड 14 इन 49 देन इट बिकम्स 63. व्हेन वी ऐड 14 इन 63 देन इट बिकम्स 77. Alhamdulillah students, we have done our lesson. Hope you will learn it. Take care yourself. Allah Hafiz and thank you.